चाहे आप वॉच एंथुसियस्ट हो या ना, आपने रोलेक्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोगों को शायद टाइमेक्स ना पता हो, बट रोलेक्स तो उन्होंने पक्का सुना ही है। एंड ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि रोलेक्स इस दुनिया का सबसे महंगा वॉच ब्रांड है, और ऐसा भी नहीं है कि वो इस दुनिया का सबसे ओल्ड वॉच ब्रांड है, बट वो तब भी इतना पॉपुलर क्यों है? और एक्चुअली अगर आप गूगल पे सर्च करो द किंग ऑफ वॉचेस, तो रोलेक्स ही आएगा। सो व्हाई इज दैट? That is what I'm going to be talking about today. Why Rolex is called the king of watches. And you can decide whether that's justified or not. Hollywood stars से लेके world leaders तक, most of the people wear Rolex watches. Rolex does not follow trends, but it creates timeless designs that stay iconic for decades. So just like a king, a Rolex doesn't shout for attention, but it commands your respect. रोलेक्स की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1905 में विथ हांस विल्सडॉर्फ। पहले रिस्ट वॉचेस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं थे, लेकिन हांस को ऐसा लगता था कि वो एक फ्यूचर ऐसा देख सकता है जिसमें वॉचेस एलिगेंट भी हैं लेकिन रिलायबल भी हैं। टू कन्विंस द पब्लिक ऑफ द रिलायबिलिटी, he equipped them with small, very precise movements manufactured by a Swiss watchmaking company in Bienne. While we are at the history, हम लोग रोलेक्स के नाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। हांस ने अल्फाबेट का हर लेटर कंबाइन करके देख लिया था, एंड ही हैड लाइक 100 नेम्स, बट नन ऑफ देम फिट। लेकिन एक सुबह ही वाज जस्ट सिटिंग इन अ हॉर्स कैरेज राइडिंग अराउंड लंदन, और अचानक से उसके मन में रोलेक्स आया, एंड दैट्स हाउ द ब्रांड गॉट द नेम। रोलेक्स का सबसे पहला फोकस था उनका मूवमेंट। उनको एक रिलायबल मूवमेंट चाहिए था। They wanted chronometric precision, and in 1910 a Rolex watch was the first wristwatch in the world to receive the Swiss certificate of chronometric precision granted by the official watch rating center in Bienne. Yes, Rolex was the first to receive this, and Rolex बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट रहा है। We'll talk about that further. उसके 4 साल बाद 1914 में क्यू ऑब्जर्वेटरी इन ग्रेट ब्रिटेन ने अवार्ड किया रोलेक्स को एक क्लास ए प्रिसिजन सर्टिफिकेट, जो एक ऐसा सर्टिफिकेट था जो अभी तक सिर्फ मरीन क्रोनोमीटर्स को मिला था। एंड उस दिन के बाद से रोलेक्सेस वर नाउ सिनोनिमस विथ प्रिसिजन। लेकिन सिर्फ रिलायबल होने से रोलेक्स एक बड़ा ब्रांड नहीं बनने वाला था। दे नीडेड मोर देन दैट। व्हाट दे नीडेड वाज इनोवेशन. And like I mentioned, Rolex was the first in many fields. Like in 1926, Rolex created the first waterproof and dustproof wristwatch, which was the Oyster. और वो सिर्फ क्लेम नहीं करते थे कि उनकी वॉच वाटरप्रूफ है, उन्होंने ये प्रूव भी किया था। In 1927, a Rolex Oyster crossed the English Channel, worn by a young English swimmer named Mercedes Glitz. The swim lasted over 10 hours and the watch remained in perfect working order at the end of it. So, first waterproof and dustproof watch was the Rolex Oyster. After that, in 1931, came the first world's self-winding mechanism with a perpetual rotor, which Rolex invented and patented. This ingenious system was really a work of art. और अब ये हर ऑटोमेटिक वॉच में यूज होता है। This perpetual movement in watches is basically वो movement जो अपने आप वाइंड हो जाता है, जिसको आपको मैनुअली वाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आप इस वॉच को पहनते रहोगे तब तक उसमें पावर रहेगी। And this is the perpetual movement which is used by all automatic watches. That's why a very famous Rolex is the Oyster Perpetual. But that isn't the end of their legacy. अभी तक we have 3 firsts. 1945 में Rolex gave the world the first self-winding wrist chronometer to indicate the date in a window on the dial. This was the date just. After that, in 1953, they released the first diver's watch waterproof to a depth of 100 meters. This was the Submariner. And 3 years after that, they released the first wristwatch to display the date and day of the week, spelled out in full in a window on the dial. This was the day-date watch. Yes, Rolex ने ऐसी 6 चीजें वर्ल्ड में पहली बार की थी। First was getting the certificate. Second was making a waterproof and dustproof watch. Third was the perpetual motion.
Fourth was the Date Just, fifth was the Submariner, and sixth was the Day Date Watch. In 1960, the Trieste successfully descended into the Mariana Trench, the deepest known depression on Earth's surface. After emerging back from the ocean, it was in perfect working order, just like the Rolex that was attached to the outside of the vessel during the historic dive. बट रोलेक्स को इतना लग्जूरियस और क्या बनाता है? वो लोग हर चीज़ इन हाउस बनाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली एक वॉच के लिए एक स्टेटस सिंबल होता है कि उन्होंने अपना मूवमेंट अपने आप इन हाउस बनाया था, क्योंकि एक मूवमेंट बनाने में कंसेप्चुलाइजिंग, रिसर्चिंग, फैब्रिकेटिंग और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जाती है. तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. और जो भी इन हाउस बनता है वो बन जाता है एक्सक्लूसिव, एंड वी ऑल नो इट, एक्सक्लूसिविटी के लिए पे करना पड़ता है. जैसे रोलेक्स का जो मूवमेंट है, उन्होंने अपना मूवमेंट इन हाउस बनाया है, तो उनके मूवमेंट पे उन्हीं का ब्रांड नेम होगा. सो एवरी टाइम यू वेयर अ रोलेक्स वॉच, यू आर नॉट ओनली वेयरिंग द हिस्ट्री ऑफ द वॉच, बट यू आर ऑल्सो वेयरिंग द हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट. क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ इसी ब्रांड के लिए है, अनलाइक द मूवमेंट विच इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एनी अदर ब्रांड. तो येस, देयर इज स्टोरी अटैच टू इट. ऑब्वियसली एक इन हाउस मूवमेंट एक वॉच एंथुसियस्ट को ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, क्योंकि क्या ही फ़र्क पड़ता है वॉच के अंदर क्या है, वॉच तो बाहर से अच्छी लगनी चाहिए. लेकिन एक वॉच एंथुसियस्ट को इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा. ऑल्सो व्हेन यू मेक थिंग्स इन हाउस, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट दे आर, व्हाट दे विल लुक लाइक एंड व्हाट दे विल डू. Construction techniques can be standardized and precise materials are used at every step. And sometimes when there is a clear case back, the movement can be finished however the brand likes. But similarly, ETA, which is a movement company, it supplies movements to a lot of brands. It is owned by Swatch, I think. It can provide the basic building blocks for movement, which the brand can customize here and there. And also having an ETA caliber serviced is usually a whole lot cheaper than an in-house movement. क्यों? क्योंकि ये ETA मूवमेंट आपको बहुत सारी वॉचेस में मिल जाएगा, तो कोई फ्रीलांसर रिपेयर वाला बहुत ईजिली इस मूवमेंट को ठीक कर सकता है. बट अगर आपका इन हाउस मूवमेंट है तो उसी ब्रांड का कोई एम्प्लॉय उस मूवमेंट को ठीक करेगा. बट लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द मूवमेंट हियर. रोलेक्स मेक्स ऑल ऑफ इट्स थिंग्स इन हाउस. There is a very great, resource called The Anatomy of a Rolex. It is on Rolex's website, and I totally recommend you going through it, because there is so much that goes into making a Rolex or any other watch actually. But it is spelled out for you so nicely, which makes it very easy to access. Rolex has made its own steel, which is called the Oyster steel. It belongs to the 904L steel family. And these alloys are most commonly used in advanced technology fields like aerospace and chemical industries. After that, the caliber 4130 is a self-winding mechanical chronograph movement entirely developed and manufactured by Rolex in 2000 for the Cosmograph Daytona. Rolex owns and operates its foundry that produces all of the gold, platinum and stainless steel that are used in its watches. जो रोलेक्स का रोज गोल्ड एलॉय है उसका नाम है एवर रोज, एंड इट इज अ स्पेशल ब्लेंड ऑफ पिंक गोल्ड दैट विल नॉट लूज इट्स वार्म ह्यू ड्यू टू एक्सपोजर टू सॉल्ट वाटर, क्लोरीन और सनलाइट. ये सब तो अलग बात है, लेकिन रोलेक्स अब एक सिंबल बन चुका है अचीवमेंट का. अगर आपके पास एक रोलेक्स है तो अज्यूम किया जाता है कि आप सक्सेसफुली होगे. ग्रेजुएशन, प्रमोशन या एक रिटायरमेंट गिफ्ट, रोलेक्स हमेशा एक माइलस्टोन को मार्क करता है आपकी लाइफ में. इट्स मोर देन जस्ट टेलिंग टाइम, इट्स टेलिंग योर स्टोरी. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस, रोलेक्स इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ वॉचेस, एंड मुझे लगता है दैट इज वाई आई थिंक दे डिजर्व टू हैव द क्राउन नेक्स्ट टू देयर नेम. सो आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग एंड यू लाइक द वीडियो. Thank you so much for watching, and stay tuned for more.